गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम सब याद करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करेंगे और निश्चित हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका 17 सितंबर को जन्मदिन था और उन्होंने 15 दिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया और आज उसकी समाप्ति हो रहा है। मैं बोरीवली में और बोरीवली से मलाड तक 12 प्रोग्राम ऑलरेडी करके यहाँ पर आया हूँ, उसमें से 5-6 तो ब्लड डोनेशन के कैंप थे। और जैसा शेट्टी ने कहा कि ये मेरा विषय टची है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दोज पीपल आर नॉट नोइंग माई पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आई हैव स्टार्टेड माई वर्क फ्रॉम स्लम in the year 1985. In those days, I was not knowing that I will be a post holder in any political party. The first day I remember when I went to then MLA Ram Naik ji's office, he was coming every Friday, Borivali, and he was meeting to the public. So one Mr. Hemendra Bhai Mehta and Amarkant Jha, they came to my house several times and instructed me to meet Ram Naik ji once. So I told politics is not my tasty subject or etc. etc. But they pressed me very hard, and one day I went to meet Ram Naik. And you will not believe, in the year 1985 or 87, I fought with Ram Naik in his office regarding this slums issue. Where I was staying, we are not having any drinking water facility, no toilets, no roads, no lights, nothing. So before that, we were trying through slum authority also. In those days, Sitaram Kunte was the first minister who introduced Slum Act in Mumbai. And slowly, some work started in slum. And when I argued with Ram Naik, he told me this is not the way of getting done work. So you tell me what your problems are there, etc., etc. And we were following from many years with the slum authorities. Slowly started our work in our area. First facility we got a toilet. So my interest increased. Then we got light, then road, etc., etc. Then what I thought that when we got the facilities, why the other people should not get? So Bharatiya Janata Party made me direct General Secretary of Borivali. And they printed 500 cards and they gave me. So I was very impressed looking to that card. So to finish that card, I started my work and still I am working. And in the year 1992, when they offered me ticket, I told no, nothing, this is not my bread and butter, I can't do this work. Because I was a die maker at that time. I was having my small unit at Sadhana Industrial Estate. I am a turner, fitter, welder and die maker. So I am doing very well at that time. But Ram Naik asked me why you are not interested. So I told him 2-4 problems which I was noticing in the political field and other some problems in the public domain. So Ram Naik ji told me that if you, in this age, if you are knowing all these problems, then you should contest the election. My first ticket in the 1992 was declared through Ram Naik. After party declared, then I contested. Then first election I won by 454 votes margin. Then winning, and it's happened. Now why I have taken up this issue? Can I come to Hindi? हाँ, नहीं तो कल न्यूज़ ये बन जाएगा कि झोपड़पट्टी की विषय पर चर्चा हो रही थी और सब कार्यक्रम इंग्लिश में हुआ है करके, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सारे SRD 180 किससे स्टार्ट हुआ, उस तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। फिर 225 हुआ, 269 हुआ, अभी 300 हुआ है। अभी धारावी का टेंडर निकलेगा, देखेंगे आगे क्या होने वाला है करके। मैं अगर शॉर्ट में आपको बताऊं, पॉलिटिकल विल अगर हो
तो एसआरए का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए और स्लम फ्री मुंबई करने के लिए सरकार को 1 रुपया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा हूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड। सरकार को 1 रुपया खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, गवर्नमेंट विल गेट रेवेन्यू, लोगों को घर मिल जाएंगे और सरकार को पैसे मिलेंगे। अब मैं थोड़े शॉर्ट में बताऊंगा कैसे स्कीम हो सकता है। आप सब हैरान हो जाएंगे इस बात को सुनकर। गए 35 साल में मुंबई शहर में 2,90,000 घर बने हैं। इन लास्ट 35 years we have constructed only 2,90,000 houses. When देवेंद्र फडणवीस जी was the chief minister, तो उन्होंने पूरे मुंबई का एक सर्वे वापस किया, तो आज की तारीख में 15 लाख प्लस पीपल आर फैमिलीज आर स्टेइंग इन स्लम। 15 लाख प्लस। तो ये गति से हम काम अगर करेंगे तो आने वाले 100 साल में भी मुंबई स्लम फ्री होने वाला नहीं है। तो आपको क्या करने पड़ेगी, जो मेरे पास, जो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं इनको कहता हूं कि कॉर्पोरेशन के प्लॉट में जितने भी स्लम है, कॉर्पोरेशन को कहो कि आप डेवलप करो। माड़ा के जितने भी स्लम है वो माड़ा डेवलप करेगी, क्योंकि माड़ा इज अथॉरिटी ऑलरेडी। गवर्नमेंट के जो भी कलेक्टर लैंड होगा उसमें स्लम अथॉरिटी को वो जवाबदारी दे दो। प्राइवेट लैंड में जितने स्लम है, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकालना चाहिए, आप 5 साल में इसको काम स्टार्ट करो, अदरवाइज वी विल एक्वायर दिस लैंड। इफ यू आर नॉट डेवलपिंग देन वी विल डेवलप। 5 साल का मौका दे दो जो जमीन मालिक है प्राइवेट लैंड का, तो सब लोग मिलकर काम स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में 10 साल में रहेगी तो भी 10 साल में स्लम फ्री होगा, इस बात का मैं दावा नहीं करता हूं। लेकिन निश्चित वार फुटिंग में अगर हम काम करते हैं तो 10-15 साल में हम मुंबई को स्लम फ्री कर सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत है इसमें, और इसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो स्लम में जो लीडर है उसके ऊपर अंकुश लाना पड़ेगा। कोई अपात्र विपात्र ये सारा 5 साल में मैंने कायदा में बहुत बदलाव कर दिया। सब 2011 तक के जो भी लोग मुंबई शहर में रहते हैं उनको घर मिलेगा। 2000 लोगों को तक के लोगों को फ्री में मिलेगा। 2000 to 2011 उनको एक कॉस्ट अभी नक्की किया, अभी बहुत कम है कॉस्ट, 2.5 लाख रुपए में उनको घर मिलेगा, ये तय किया है। और विद इन द डेंसिटी, जो अभी 4 का डेंसिटी है, वो 4 के डेंसिटी में डेवलपमेंट होकर घर मिल सकता है लोगों को। 4 के ऊपर जो है थोड़ा बहुत अगर कहीं हुआ तो कहीं 3.5, 3.8 में होता है तो वहां पर जो एक्स्ट्रा पीएपी मिलेगा वो वहां को हम शिफ्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने कायदा में ये ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है, जो बचेंगे उसको हम एमएमआर रीजन में भेज देंगे, एमएमआर रीजन में भेजेंगे। अब मेरा एक जो लड़ाई चल रहा है इन दिनों में ग्राउंड+1 के स्ट्रक्चर का, मैं कौन से ग्राउंड स्ट्रक्चर की बात करता हूं, जो 2000 के पहले के पूरी चालियां बनती थी एक समय में। बिल्डिंग कंसेप्ट तो बाद में आ गया ना, आप कितने भी बड़े पैसे वाले होंगे, गांव में तो अब हमारा अभी भी घर चाली टाइप में ही है, किसका बंगलो होगा। तो पहले लैंड ओनर स्वयं ग्राउंड+1 का चाली बनाते थे और वो बेचते थे, नीचे अलग बेचते थे, ऊपर अलग बेचते थे। अब जो बचे हुए जमीन में स्कैटर्ड स्लम आ गया, तो वो स्कैटर्ड स्लम का कायदा है लेकिन ग्राउंड+1 का कायदा में लिखा नहीं है, इसलिए इनको घर नहीं मिलता है, वो लोग स्कीम में जाते नहीं है, इसलिए बड़ी परेशानी है मुंबई शहर में। तो मैं मांग कर रहा हूं कि भाई ये जो ग्राउंड+1 के जो स्ट्रक्चर है, जिनका असेसमेंट है, जो अलग फैमिली है, जो लाइट बिल है उनके पास, उनको आप जगह दे दो करके। अब सरकार के सारे लोग मान गए हैं, मैं हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन भी फाइल किया है और सरकार के लोग अभी मान गए। देवेंद्र फडणवीस जी को मैं 15-20 दिन के पहले मिला तो उन्होंने कहा कि डेंसिटी में अगर बैठता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर डेंसिटी में बैठता है, डेंसिटी में कैसा बैठता है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा, अभी आप यू विल बी शॉक, आपकी काम करने की गति स्लो हो जाएगी कि गोपाल शेट्टी जैसा व्यक्ति लगने के बाद में भी ये नहीं हो रहा है। मलार मालोनी में एक तक्षशिला नाम की बिल्डिंग है, बिल्डर ने पूरा बना दिया घर। वो बिल्डिंग में 35 लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, 40 लोगों का एक्स्ट्रा घर बनकर पड़ा है, 4 साल से पड़ा है, 4 साल से लोग बाहर है, बिल्डर उनको भाड़ा भी देता नहीं है, ये घर बंद पड़ा है, वो उनको अलॉट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिसीजन गवर्नमेंट के लोग करते नहीं है। मैं गवर्नर साहब को मिला जाकर, गवर्नर साहब ने मिलिंद महेशकर
और सीओ एसआरए सतीश लोखंडे, इन दोनों को कहा कि आप जाकर वहां देखो, गोपाल शेट्टी जो बोल रहे, आप जगह पे जाकर देखोगे तो आपको इसका ग्रेविटी पता चलेगा। लेकिन बड़े ऑफिसर था तो मैंने कहा कि ठीक है आप नहीं आएंगे तो चलेगा, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजो, वो आए, देख कर गए, रिपोर्ट उन्होंने कर दिया। अब सीओ एसआरए ने ये 40 घर अपने ताबे में ले लिए, ही इज ओनली वेटिंग फॉर गवर्नमेंट क्लियरेंस। वो जिस दिन बोलेंगे उस दिन ये 40 लोगों को घर मिल जाएगा। अब मैं आपका थोड़ा और ग्रेविटी आपकी सोच में बढ़ा रहा हूं। ये जो स्लम में रहने वाले जो काम करते हैं ना, आज भी 10 और 15 हजार रुपया महीने का कमा के वो अपना घर चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बीमारी के लिए भी उसी में से पैसा निकालते हैं, ये करते हैं। अब इनको आपने शिफ्ट कर दिया तो आप 10-15 हजार रुपये जो कमा रहे हैं वो भाड़ा भर रहे हैं, उनके खाने के वांदे हो गए, उनका खाने का प्रॉब्लम हो गया। आज ये स्थिति है, ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स क्लियरेंस नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट अपना माइंड ओपन नहीं कर रही है, इसलिए इतने बड़े प्रॉब्लम्स एक तक्षशिला नहीं तो बहुत सारे जगह पर लोग हैरान परेशान हैं। अब मैंने कल ही एक लेटर दे दिया चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को, रेलवे लाइन के बाजू के लोगों को घर नहीं मिल रहा है। रेलवे लाइन के बाजू में, अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा स्लम कैसे हुआ जनरेट मुंबई शहर में, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम लाया सबको घर होना चाहिए, ये पहले स्कीम तो था ही नहीं। अब मुंबई वॉज द फास्ट डेवलपिंग सिटी इन आवर कंट्री, आई विल से। टेलीफोन के लाइन आ गए, तो टेलीफोन का काम करने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग आ गए, तो टेलीफोन का जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उन्होंने गवर्नमेंट के लैंड पर लोगों को बसा दिया। 1 रूम किचन तो लेकर कोई टेलीफोन का लाइन खंबे पे चढ़ने वाला काम नहीं करेगा, उसको परवड़ेगा भी नहीं, तो वहां पर बिठा दिया। आप सबको इस बात को सुनकर आश्चर्य होगा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज डेवलप्ड सीवर लाइन अंडर द ग्राउंड। वी वेंट 2200 मीटर डीप and we have dug 10 मीटर डायमीटर बोगदा टनल जिसको कहते हैं, और ये टनल में सारा जो अपने बिल्डिंग का सीवरेज निकलता है वो पंपिंग स्टेशन में जाके ट्रीट होकर फिर उसमें वो पानी उसमें छोड़ते हैं। ये पानी वापस आपकी जानकारी के लिए दरिया का स्टार्टिंग से 3.6 किलोमीटर अंदर वापस बोगदा बनाया हम लोगों ने दरिया के नीचे, और वहां पर जाके वो पानी को छोड़ते हैं। क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल वाले का ये है कि आप माहिम का आप लोगों को मालूम है कितना स्मेल आता था, तो ये पूरा सीवरेज को ट्रीट कर कर समुद्र के 3.6 किलोमीटर अंदर भोगदा बनकर फिर वहां पर पानी छोड़ते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बनी है। नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा ये सीवरेज प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका ने किया है, एशिया का। आई वॉज द डेप्यूटी मेयर इन 1998, तो अटल जी को लाकर इसका उद्घाटन करने का ये हम लोगों ने तय किया था, लेकिन मेयर इन काउंसिल बर्खास्त हो गई, फिर बाद में अटल जी आएंगे तो सारा क्रेडिट बीजेपी को मिलेगा। इसलिए इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद भी मुंबई शहर के लोगों को आज भी मालूम नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने अभी अपना माइंड ओपन किया होगा। हमको लगता है हम टॉयलेट में जाते हैं, हमारे घर में उधर नीचे आता है, सीवर का सामने एक बना हुआ है, उसमें जाता होगा, उसमें से कहाँ जाता होगा। तो इतना सारा प्रोसेस कॉर्पोरेशन कर इसका मराठी में जिसको कहते हैं करने का काम हम लोग कर। अब स्लम, मैं सिस्टम के लोगों को कहता हूँ, आपके सामने इसलिए कहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट है इस विषय को लेंगे तो कभी कभी एनजीओस को थोड़ा अधिक ताकत मिलता है। कोर्ट के लोग भी मानते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी मानते हैं। मैं ये हमारे लोगों को कहता हूं, गवर्नमेंट के जितने भी प्लॉट है, अब कॉर्पोरेशन के पास 82,000 करोड़ रुपीस बैंक में पड़ा हुआ है। ये दिलीप पंडित के भी जानकारी के लिए, ये बैंक में क्यों पड़ा है, ये कभी से खा पी के पूरा हो जाता था। ये डायरेक्ट बजटरी पैसा नहीं है, ये पैसा मुंबई शहर के जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्ज भरा उसमें से कॉर्पोरेशन ने थोड़ा उनके पास से एक्स्ट्रा पैसा लिया है। आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और बीसीसी आने के बाद में डेवलपर को ये रिटर्न देने का पैसा था। मुंबई शहर में किसी को भी ऑक्यूपेशन बड़े पैमाने पे नहीं मिला, अभी मिल रहा है। बीसीसी तो बहुत कम लोगों ने किया होगा, और डेवलपर बांध के चले जाता है, फिर वो कॉर्पोरेशन के पीछे कौन पड़ेगा पैसा लेने के लिए। और ये पैसा जमा होते 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 82,000 करोड़ हो गया। अब ये बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है क्योंकि इसका इंटरेस्ट आ रहा है। इतना पैसा कॉर्पोरेशन के पास है, म्हाडा के पास अपना फंड है, एसआरए के पास अपना फंड है, तो ये सारे लोग अपने फंड में से
उनका जमीन डेवलप करके बाकी का सेल कंपोनेंट मार्केट में न बेचते हुए वो सारे घर इन्होंने 300 फुट का बनाना चाहिए, ताकि इस मुंबई शहर में रहने वाले सामान्य लोगों को अगर घर खरीदना होगा तो ये 300 फुट का वो लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि बिल्डर का नहीं पड़ेगा उनको। बिल्डर का आज 1 रूम किचन भी अगर आप लेंगे तो मिनिमम 80 लाख रुपीस उसका कॉस्ट है, और मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से ये 300 फुट का घर हम मैक्सिमम 35 लाख रुपए में दे सकते हैं। इतना 50% कॉस्ट में लोगों को ये घर मिल जाएगा, ये आसानी से हो सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम में सब कॉन्ट्रैक्ट ये वो अमुक तमुक करने की वजह से ये सारा होता नहीं है, और मुंबई शहर के लोग भी इतने सौम्य हो गए हैं, वो जीते हैं, उनको भला ऐसा लगता है ऐसा ही जीना है, कोई होने वाला नहीं, कोई करेगा नहीं, ऐसा उन्होंने अपना एक मेंटल सेटअप कर लिया है। मैं आपकी संस्था को अभिनंदन इसलिए करना चाहूँगा कि आप ये काम करते हो, ये काम पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों का है। मैं आज सारा 12 कार्यक्रम करने के बाद में भी यहाँ पर आया तो आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ। ये हमारा काम है जो आप लोग करते हैं, वी आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम। उसके बावजूद भी ये नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि इसको आप चलाइए, इसको आप आगे बढ़ाइए। मैं इसको और थोड़ा अभी गति देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी रेलवे लाइन का 1 नेशन 1 कानून की बात हम करते हैं, 1 नेशन 1 लॉ। अब ये रेलवे लाइन का भी ऐसा ही है। रेलवे लाइन जो डालने के लिए तमिलनाडु से यहाँ से वहाँ से जाके वर्कर लोग को लाया, तो रेलवे ने उनको अपनी जमीन पर ही बसाया। कल्पना ये थी कि लाइन का काम हो जाएगा पूरा और ये निकल जाएंगे, लेकिन 2 लाइन का काम पूरा हो गया तो गर्दी बढ़ गई, डिमांड ज्यादा आ गया, 4 लाइन का प्लानिंग पास हो गया, तो 4 लाइन का करने के लिए भी वो वर्कर वहां के वहीं रह गए। इसमें मैं 100% नहीं कहता हूँ, 10-20% बाकी लोग घुसे होंगे, लेकिन 80% लोग बहुत जूने हैं, उन्होंने ये सारा रेलवे का ही काम किया है। अभी आप कभी कभी ट्रेन में से जाते समय देखते होंगे, वो पाटे का जो क्लिप होता है, वो रूल्स होता है, उसको ठोक के टाइट करते हैं। क्या ये 1 रूम 2 रूम किचन में से आते हैं? नहीं ना, वो झोपड़पट्टी में रहते हैं। आपके घर में बहन सवेरे दूध लाने वाला कोई 1 रूम किचन में रहता होगा, 2 रूम में रहता होगा? नहीं, वो झोपड़पट्टी में रहता है। आप चाय पीने के बाद में आपको पेपर पढ़ने को मिलता है, वो भी वो झोपड़पट्टी वाला ही लाके देता है। आप चाय पीने के बाद में आपको जॉब करने के लिए जाना है, आपका स्वयं का गाड़ी होगा तो ड्राइवर झोपड़पट्टी में से आता है। आपको रिक्शा में जाना है तो रिक्शा चलाने वाला झोपड़पट्टी में से आता है। दोपहर को आपको सब्जी बनानी है, वो सब्जी मुंबई के मार्केट में से जाकर लाकर और रास्ते पर बेचने वाला वो झोपड़पट्टी में रहता है। आपकी अगर कोई फैक्ट्री है तो आपके फैक्ट्री में काम करने वाला भी झोपड़पट्टी में से आता है। ये सारा चीज का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारा जो क्रिएटर ऑफ मुंबई, ये बड़े बड़े इमारत बनते हैं, उसके भी सारे कामगार कड़िया से लेके बिगारी सब ये झोपड़पट्टी में रहते हैं। जो क्रिएटर है उसको घर ही नहीं है मुंबई शहर में, और ऐसा रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके और रिपेयरिंग करते हैं। म्युनिसिपैलिटी आता है, पॉलिटिशियन लोग कंप्लेंट करते हैं, जो नगर सेवक का काम है उसको परमिशन लेके देने का, वो परमिशन तो लेके देता नहीं है, लेकिन वो रिपेयरिंग करेगा तो आके खड़ा हो जाता है, माजा का है मेरा क्या। ये सारा चल रहा है मुंबई शहर में। इसलिए मुंबई शहर के ये झोपड़पट्टी वालों को ये झंझट में से निकालना, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी, आजाद देश हो गया है, लेकिन झोपड़पट्टी वालों को आज़ादी करना, और ये 2 तारीख का तारीख आपने तय किया, इसलिए मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी को याद करके ही ये झोपड़पट्टी वालों को हम आज़ादी दिला सकते हैं, झोपड़पट्टी में से इनको मुक्ति दिला सकते हैं। मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि इस मूवमेंट को आप और तेज़ी से आगे बढ़ाइए, जोर से आगे बढ़ाइए। मैं मैक्सिमम आपको सपोर्ट करूँगा, और मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको 2-5 साल आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं देवेंद्र जी को मिला, मैं तो पहले माले वाले की बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि जो स्कैटर्ड स्लम में भी ऊपर रहते हैं उनको भी हम घर देंगे, लेकिन उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देंगे, उनको एक कॉस्ट नक्की करेंगे, बैंक के साथ में उनको टाइप कर देंगे, बैंक में से लोन ले लेंगे, और एक 20-30 साल तक उसको बोले बैंक में आराम से पैसा भरते रहो, और ये पूरा होने के बाद में घर आपका हो जाएगा। ये एक नया कानून मुंबई शहर के लिए देवेंद्र जी मिलकर बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि आपकी संस्था थोड़ा इसके पीछे थोड़ा पुशअप मिले करेंगे ना, मैं ऐसा मानता हूं कि ये आपके भाग्य में ही है, इसलिए आप लोग इसमें घुसे। नहीं तो ये आपके मन में कैसा आ गया ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि स्लम का काम हम लोगों ने करना चाहिए। तो भगवान ने शायद इसका जस जो है वो आपके हाथ में लिखा होगा, तो इसको आप करिए। ये 6 महीने के अंदर मैं आपको कहता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव मुंबई शहर में डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, ऐसा हम सब लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। मैं कल ही
मुंबई के कमिश्नर को भी मिल रहा हूँ, रेलवे के जीएम को हम मिलेंगे। मैं देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी का टाइम लिया है। उत्तर मुंबई के सभी एमएलएस हम मिलने के लिए जाने वाले हैं। तो वी आर ऑन द फास्ट ट्रैक। थोड़ा आप पीछे से धक्का मारेंगे तो ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत पुण्य मिलेगा आप लोगों को, मुझे भी मिलेगा, लेकिन हम सबको इतना पुण्य मिलेगा। एक व्यक्ति को अपना स्वयं का घर अच्छा हो जाता है तो वो उसका लाइफस्टाइल कितना बदली हो जाता है, ये मैंने स्वयं देखा है। मैं अंतिम बात बताकर पूरा करूंगा, जो आप लोग शॉक हो जाएंगे सुनने के बाद में। आई हैव स्पेंड माई 55 years golden age in slum because I am a product of slum। मैं जिस बस्ती में रहता था उनको कमिटमेंट किया था कि आप सबको मैं बिल्डिंग में भेजूंगा, उसके बाद में मैं बिल्डिंग में रहने के लिए जाऊंगा। लेकिन मेरी बच्ची बड़ी होती गई तो मेरे घर के लोगों ने प्रेशर किया कि भाई इनका शादी करना है, तुम निकलो यहाँ से। फिर मैं 10 साल हो गया अभी, आई हैव शिफ्टेड टू बिल्डिंग। और मैं बिल्डिंग में जाके जो जीवन का जो सुख है, मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूँ, वो मैंने महसूस किया कि क्या लाइफ है करके। क्योंकि मैंने वहाँ पर भी देख रहा है 44 डिग्री में महीने में 200 फुट के 250 फुट के घर में रहना, ये कितना तकलीफदेह होता है, ये मैंने सहा है। तो मुझे वो दिन याद आते हैं अभी भी। तो इसमें बहुत बड़ा पुण्य आप लोगों को मिलेगा, ये आप करते रहिए। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।